GIS 25, and I'm very happy to share that almost an investment of about rupees 10 lakh crore plus has been grounded. When we say grounded, it means that the first step of allocation of land has happened in those projects. And we are focusing because, as all of us know, the future lies in IT, data centers, GCC. So we are focusing on that. Some good investments have already happened there. As Mr. Selvendran, the energetic principal secretary, tells me that almost about 12,500 crore investment has already been grounded. But this series of tech conclaves, because we wanted to be a big player there, which was started in May 25, first conclave, as Mr. Reddy just mentioned also, then November 25, and here we are doing the third part of the series, and the transformation was shared by Mr. Reddy. And we were focusing because, as when we were sitting to plan it out, I was told by Mr. Selvendran that we'll have to see an investment of about 25,000 crore coming and being promised in this conclave. But thanks to Mr. Peter Smets, he did not announce, but he has been kind to permit me to disclose his investment of $2 billion. To be a big player there, which was started in May 25, which actually takes the total promised investment in today's conclave to beyond 40,000 crore. So this is something which is a big news for the state. When we were our policies, people have been talking about across the country about the good policies made by government of Madhya Pradesh under the able leadership of Honorable Chief Minister. But policy may attract first investments, that's the end of it. But the repeat investments actually reflect the confidence of investors in that particular state. And what I can share with you, in just about 1.5 years since GIS, we have got repeat investments, at least 5 or 6 major repeat investments I am personally aware, where people have come and they have shared with me that they have shifted their proposed investment from some other place to Madhya Pradesh because of the speed of execution. That is remarkable. Now, why Madhya Pradesh is a preferred destination? We have been speaking about it. Actually, more important than what I would say is what our investors shared about Madhya Pradesh, the speed, like Mr. Patrick shared. Chief Minister went to Barcelona, met him. The conversation was on. Finally, they were kind enough to make their plan, and they applied for land about 15 days back. And within a period of 6 to 7 days, the land allocation was made. So that is the speed at which we try to work. That is remarkable. We are strategically located. We have the talent, as it was mentioned in the film, like Indore has IIT and IIM. Initially, it was the first city in the whole country to have IIT and IIM both. Bhopal has got triple IT and IISER. So these are the iconic institutions. Gwalior has got triple ITM. Jabalpur has got triple ITDM. They are all national institutes producing high quality results. Plus, additionally, our state engineering colleges like MANET, GSTI, MITS, they are also doing wonderfully well. We have sufficient land, but more importantly for the IT system, we understand that it is the plug and play infrastructure that is what is really required. And we are prepared for that. Our policy also allows PPP in plug and play infrastructure. So I'm happy to share some of the big players like Panchsheel. In GIS 25, they made first our MOU, and now they are actually looking at a very close time when they'll be sort of lighting up their IT park. That original proposal was for the government to make because we had a good piece of land, but we decided to go the PPP way. So Panchsheel's investment of about 1,000 crore, DNR's investment about 500 crore is seeing the light of the day. Our electronics manufacturing park in Bhopal has started seeing the good investments like Emerald Infraspot. Now another big news is coming, which Honorable Chief Minister has already approved, Government of India has already agreed, and hopefully will have an MOU soon, is the telecom manufacturing zone in Gwalior.
that has been agreed to in principle. Honorable Chief Minister has already approved. That's another very well strategically located place. So we have sufficient land, sufficient plug and play places to offer. We have about 15 million. We have sufficient land, square feet of plug and play infrastructure, out of which about 70 to 80% is occupied. That's more than the industry. Another 20% available. And the industry tells us that within the next 4 years, they will reach 50 to 60 million square feet of ready plug and play space. Then we have sufficient power. We are going very fast on the green energy. We have done some very interesting experiments of technology neutral storage solution for the green energy, solar energy, and we have been able to attract the best pricing in the country or anywhere in the world, because India comes out with the cheapest prices on these issues. So our prices of solar energy have been as low as rupees 2.15 per unit in our solar parks. Then most important part is we have a responsive governance, which I think has amply been reflected. And another very important feature of Madhya Pradesh is it is all mingling culture. I can say it with confidence. Anybody who has come to Madhya Pradesh has never felt like an outsider. That is the beauty of Madhya Pradesh. And it is basically a historical reflection in the manner in which the state was carved out. When states were carved out on the linguistic basis, whatever left, which was a combination of about 4 or 5 different geographies, into one as Madhya Pradesh. So therefore, everyone feels as insider. Nobody is treated like an outsider in this place. So this is the time for investors to invest in Madhya Pradesh, and I am extremely grateful to all of you, all the captains, for having taken time and agreeing to invest in Madhya Pradesh. Thank you so much. देवियों और सज्जनों, किसी भी कॉन्क्लेव की सफलता केवल विचारों से नहीं बल्कि उन विचारों को धरातल पर उतारने वाले कार्यों से तय होती है। आज का यह अवसर मध्य प्रदेश की तकनीकी प्रगति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। देवियों और सज्जनों, ये नई इकाइयां प्रदेश में 178.7 करोड़ के निवेश तथा 1229 यूनिट इकाइयों के नए रोजगार के अवसर सृजित करने जा रही है। लोना से है, आपके द्वारा $2 बिलियन का निवेश किया जाना है और लगभग 200 एम्प्लॉयमेंट्स आपके द्वारा दिए जाएंगे। तत्पश्चात मैं कॉलेज खबरी के प्रतिनिधि से निवेदन करती हूं, कृपया आप मंच पर पधारें और ये आवंटन पत्र जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त करें। मैं सभी से निवेदन करती हूं जिनको आज ये आवंटन पत्र मिलने जा रहे हैं, कृपया जल्द से जल्द आप मंच पर पधारेंगे। भोपाल में ही आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं। आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 6 करोड़ का होना है और आप 33 लोगों को यहां रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद कंपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, कृपया आप जल्द से जल्द मंच पर पधारें।
इसके बाद ड्रीम टेलीकम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड डीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर, आप तैयार रहिए। कृपया आप सभी जल्द से जल्द मंच पर पधारें और यह आवंटन पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आप यहां प्राप्त कर रहे हैं। कंपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, ड्रीम टेलीकम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, आपके द्वारा 5.5 करोड़ का निवेश किया जाना है और आप लगभग 90 लोगों को यहां रोजगार प्रदान करेंगे। तत्पश्चात मैं निवेदन करूंगी डीएससी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से, कृपया आप मंच पर पधारें। आपके द्वारा लगभग 130 करोड़ का निवेश किया जाना है और लगभग 200 लोगों को आप यहां रोजगार प्रदान करेंगे। इसके बाद मैं साइंटिफिक मेस टेक्निक प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों को मंच पर आमंत्रित करूंगी। आपके द्वारा लगभग 25 करोड़ का निवेश किया जाना है और आप 150 से अधिक लोगों को यहां रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। इसके बाद IITI दृष्टि CPS फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंच पर पधारेंगे। IT पार सिंहासा में आप लाने जा रहे हैं। आपके द्वारा 10 करोड़ रुपए का निवेश होगा और आप 300 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने जा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से एमरल्ड इंफ्रा इस्पात लिमिटेड के CCIP स्वीकृति आदेश को प्रदान किया जाएगा। इस कंपनी द्वारा लगभग 422 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है, जिसके माध्यम से प्रदेश में लगभग 314 नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया कंपनी के प्रतिनिधि को CCIP ऑर्डर की स्वीकृति आदेश प्रदान करने की कृपा करें। जोरदार तालियों के बीच हम ये CCIP ऑर्डर प्रदान कर रहे हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम साक्षी बनने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण साझेदारी के, जो मध्य प्रदेश के टेक्नोलॉजिकल और कई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। ये समझौता गूगल क्लाउड के साथ, जिसने मध्य राज्य के AI स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम तथा भविष्य की डिजिटल प्रतिभाओं के निर्माण को सशक्त बनाया है। मैं अदिति चतुर्वेदी जी, इंडिया लीड फॉर गूगल प्ले और MPSCDC के प्रबंध संचालक श्री आशीष वशिष्ठ जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में इस महत्वपूर्ण समझौते के आदान प्रदान की प्रक्रिया को संपन्न करें। एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाएं देवियों और सज्जनों। ये बेहद महत्वपूर्ण समझौता है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में यहां पर किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब वो विशेष क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के दूरदर्शी नेतृत्व में मध्य प्रदेश आज GCC सेमीकंडक्टर डेटा सेंटर एवं उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई पहचान स्थापित कर रहा है। हम सभी करतल ध्वनि के साथ उद्बोधन के लिए अब आमंत्रित करना चाहेंगे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को। मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3 के आज के शुभारंभ के अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे मुख्य सचिव श्रीमान अनुराग जैन जी, प्रोफेसर राजेश दीक्षित जी, प्रमुख सचिव विज्ञान टेक्नोलॉजी M सेल्वेंद्रन, श्री संतोष कुमार पारस सेमीकंडक्टर CEO, मिस्टर पैट्रिक CEO समर, श्री विनोद पटानी जी CEO आर्सेनल इन्फो सॉल्यूशंस, श्री असीम राजिक जी चेयरमैन एमराल्ड, श्री श्रीनिवास थॉमसन CEO सेमीकंडक्टर। नाम तो काफ़ी हैं, शिवनंदा जी, चथर देव सिंह जी, सिद्धार्थ रेड्डी जी, श्री विकास जी,
श्री गणेश महावाला जी, श्री शशि भारद्वाज जी, श्री सनील मेहरा जी, पवन कुमार गर्ग जी, राजेश बेटचा जी, श्रीमती अदिति चतुर्वेदी, श्री शिखर एस राव, श्री रितेश कुमार, इस सभागार में मौजूद प्रदेश और देश के बाहर से आए सभी भाइयों बहनों, आपको सबको मध्य प्रदेश की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जोरदार ताली बजा करके आज के शुभारंभ में हम सब सहभागी हो जाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से करवट बदल रहा है, वो समय गुजरा जिस समय के कारण से भारत की कई प्रकार के संभावनाओं पे तो सरापात होता था। आज बदलते दौर में भारत अपनी क्षमता, योग्यता, बुद्धिमत्ता, प्रतिभाशीलता के बलबूते पर दुनिया में वो सब करके दिखा रहा है जिसके बारे में अतीत का गौरवशाली पक्ष तो उसका साथ था, लेकिन अभी बीच के दौर में जैसे हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कभी कभी समय खराब निकल गया, उसको कब तक कोसते रहेंगे। अब समय समझने वाला है, आगे बढ़ने वाला है, और आगे बढ़ते दौर में पूरे देश के अंदर एक स्वस्थ वातावरण माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 12 साल का समय कोई बहुत नहीं होता है, लेकिन 12 साल के समय के अंदर ही देश की पहचान दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाले देश के रूप में बनी है, और केवल एक क्षेत्र नहीं, सभी क्षेत्रों में। और खास करके आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, हमारे प्रदेश के लिए भी मध्य प्रदेश की पहचान पहले केवल एग्रीकल्चर, माइनिंग, फॉरेस्ट के माध्यम से पहचानी जाती थी, लेकिन आज बदलते दौर में डिफेंस से लेकर ड्रोन तक, साइंस टेक से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से लेकर फ्यूचर ग्रोइंग सेक्टर तक, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपके साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश अब तेज गति से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल हुआ है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये गौरव और हर्ष का विषय 2024 से टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव की यात्रा से प्रारंभ हुआ, और इसका आज तीसरा संस्करण है, तीसरी पायदान तक हम पहुंच रहे हैं। लेकिन पिछले 2 वर्ष में भी जो हमने संकल्प किए, उन दोनों संकल्पों हम आगे क्षमता, योग्यता और अपनी उपलब्ध सारी परिस्थितियों के कारण से सफलता के साथ कदम बढ़ाते हुए जो हमने संकल्प लिए, वो संकल्प को परिपूर्ण करते हुए दोनों कॉन्क्लेव के माध्यम से जब 46,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव हमको प्राप्त हुए, 22 नई औद्योगिक तकनीकी इकाइयों का लोकार्पण, 4 नई परियोजनाओं का भूमि पूजन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 से लेकर आज तक टेक सेक्टर में 12,000 करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पे उतर चुका है। ये हमारे अपने काम करने की गति भी बताती है और कॉन्फिडेंस भी बताता है कि हाँ, जब हम अपने बीच भाषण करते हैं तो ये अलग बात है कि एआई, सेमीकंडक्टर और नई टेक्नोलॉजी वाले लोगों का उत्साह उमंग तो बहुत रहती है, लेकिन ताली बजाने में थोड़ी कंजूसी होती है, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है। आज के इस दौर में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, दिमाग भी चले और शरीर भी चले, दोनों के बीच का जुड़ा हो तो आनंद आता है। ये भोपाल हमारे कई कारणों से अपने प्रदेश के अंदर वो गौरवशाली समेट को प्रदेश समेट के चलता है। आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की पहचान हमारे सर्वाधिक लोकप्रिय तत्कालीन समय के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी से भी होती है। जोरदार अभिनंदन करें, उनके कारण से भी भोपाल को और मध्य प्रदेश को देश और दुनिया में गौरव और गर्व मिलता है, जिनने अपनी भाषा के बलबूते पर राष्ट्रभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ में बोलते हुए पहली बार गौरव का मौका दिलाया। और कितना अच्छा लगता है आज हमारे प्रधानमंत्री भी दुनिया के सामने राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करते हैं। मैं मोदी जी का भी अभिनंदन चाहूंगा आपके सबके माध्यम से। हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना से आगे बढ़ना है, हमको अपने सभी देशों से भी प्रेम है, दुनिया के देशों के बीच भी अच्छाई बांटना है। और जब हम अपनी क्षमतावान भविष्य की योग्यता के बलबूते पर उड़ान के लिए आगे बढ़ते हैं, तो सरकारों के माध्यम से हमारे सभी प्रकार की संभावनाओं पे आगे बढ़ने का मौका है। ये अलग बात है, आज के इस दौर में इसी मंच पर भी
बोलने के लिए मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ कठिनाई भी है। आज हमारे अपने राज्य के अंदर एक उपचुनाव भी है और वो पीताम्बरा पीठ पर जहाँ कर हमारे अपने उपचुनाव में फॉर्म भरने की आखिरी तारीख भी है। अब ये अलग बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, दुनिया का सबसे युवा देश भारत है और भारत के अंदर वो सब संभावना है जिसके लिए यहाँ बैठा हुआ बौद्धिक क्षमता से परिपूर्ण पूरी ताकत से बढ़ने वाला एक समूह है जो भारत को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा और वैश्विक स्तर पर अपनी बौद्धिक क्षमता से सारे उलझे सुलझे प्रश्नों के बीच लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराएगा और नवीन तकनीक के नए धरातल तक अपनी मन के संकल्प शक्ति से आगे बढ़ने के नए संकल्प की तरफ बढ़ेगा। आइए, मैं अपनी ओर से जब यहाँ सबमर की तरफ से देखता हूँ तो मैं बीते समय बार्सिलोना गया था, लेकिन बार्सिलोना की बात करूं उसके पहले केवल मध्य प्रदेश ने अपने 2 वर्ष के अंदर जो छलांग लगाई है, ये केवल यहाँ का एक अभियान हमारा एमओयू नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने एफडीआई के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमारे बीच स्पेन की कंपनी सबमर टेक्नोलॉजी वालों ने अभी अभी अपने इस संकल्प को दोहराया है, जिसको अनाउंस हमारे सीएस अनुराग जैन जी ने किया है। मैं याद करता हूँ बार्सिलोना 2025 में जब आपके यहाँ गए थे और खास करके 1 गीगावाट के एआई रेडी डेटा सेंटर क्षमता हेतु हमने एमओयू किया था। मुझे तो उस समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ऐसा लग रहा थोड़ा ज़्यादा तो नहीं हो रहा, लेकिन 1 साल से भी कम समय में आप भोपाल आ गए और हमारे उस धरातल पे उतरने वाले इस नए संकल्प पे आप शामिल हुए। आइए, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम आपका स्वागत करते, अभिनंदन करते। ये तो पुरानी बात हुई और आप आगे जैसा जैसा चाहेंगे मध्य प्रदेश की धरती वो सब उपलब्ध कराना चाहेगी। केवल आपको नहीं, मंच पे बैठे सभी मित्रों के लिए जोरदार अभिनंदन। हम बड़े से बड़े और छोटे से छोटे निवेशकों के लिए समान रूप से अवसर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। हमारी सरकार विकास के मामले में खासकर भविष्य की इन सभी एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा हर क्षेत्र के लिए अब तो हमारे यहाँ मैं मान के चलता हूँ डीप टेक का आधुनिक रिसर्च पार्क और हमारी साइंस सिटी कई सेक्टर में जो अभी तक सोचा नहीं था, मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब मिलकर के आज दिन भर, मैं तो अमृत की नगरी 12 साल में एक जगह जहाँ कुंभ का स्नान होता है, जहाँ विचार विमर्श के बलबूते पर भविष्य की भारत और सनातन संस्कृति की धारा निकलती है। मैं उम्मीद करूँगा अभी के उद्घाटन सत्र के बाद दिन भर आप अपना विचार मंथन करें। शाम को मैं आपके बीच आकर के 1 to 1 करते हुए आपके संकल्पों के साथ सरकार को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। हमारे सारे अधिकारी आपके साथ रहेंगे, जिनके बलबूते पर आप भविष्य में अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। मैं आपको शुभकामना देता हूं, आपको बधाई देता हूं। और इसी के साथ साथ यहाँ मैं कुछ घोषणाएं करना चाहूँगा। इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं। जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूँ। भोपाल आईटी पार्क, यहाँ 4 लाख वर्ग स्क्वायर फीट का बड़ा एक हमारा अपना आईटी पार्क बनाया जाएगा। यहाँ विश्व स्तरीय सभी डिजिटल सेवा कंपनियों को प्लग एंड प्ले के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी। एवीजीसी एक्सरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंदौर, ऐसे इस बहुत सारी चीज़ों के साथ खासकर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि नया आईटी पार्क भी जब हमारा कोलार सतगढ़ी में बन रहा है तो यहाँ पर भी 5 एकड़ का प्लग एंड प्ले का बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, जिसमें हमारे भविष्य के युवाओं के लिए भी उनकी कंपनियों को काम करने की जगह मिलेगी। एआई से लेकर के सभी सेक्टर में नवाचार, अनुसंधान, कौशल विकास
एवं उद्योग अकादमिक सहयोग के लिए सरकार कटिबद्ध है। मैं एक बार फिर आपका राजा भोज की नगरी भोपाल में प्राकृतिक रूप से सबसे अच्छा वर्ष का महीना अगर माना जाता तो वर्षा काल का, ऐसे में हमारी इस सौंदर्य की पता नहीं कितने प्रकार से भोपाल को जाना जाता है, लेकिन सच में देश का मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आपका पुनः नए संकल्प के लिए स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। पुनः आपको आज की इस दिन की अच्छी शुरुआत के लिए बधाई देती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी उद्बोधन ने न केवल मध्य प्रदेश की तकनीकी प्रगति को स्पष्ट किया है, बल्कि प्रदेश के ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर, सेमीकंडक्टर्स, डेटा सेंटर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अग्रणी बनने के आपके संकल्प को भी शक्ति और सशक्त रूप प्रदान किया है। अब आज के इस गरिमामय आयोजन के प्रथम सत्र के औपचारिक समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैं एमपीसीडीसी के प्रबंध संचालक श्री आशीष वशिष्ठ जी को आज के इस समापन उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियां हो जाएं श्री आशीष वशिष्ठ जी के लिए। इसी सब के लिए जो हमारी पॉलिसियाँ तो है ही, अब पॉलिसियों से बढ़कर इन्वेस्टमेंट के लिए CCI को भेज करके उनको भविष्य में आगे बढ़ने के लिए सभी प्रकार के अनुकूलता उपलब्ध कराते हैं। इसी का परिणाम रेलगाड़ी कंपनी की PCB मैन्युफैक्चरिंग परियोजना 422 करोड़ की CCI की इन्वेस्टमेंट किया। इस परियोजना से लगभग 3.25 रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इससे प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र में मजबूत आज इसमें गूगल के साथ इंटेलिजेंस और खास करके डिजिटल क्षमता के साथ एक जो हमने किया इसका लाभ मिलेगा। इन साझेदारी से उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, डिजिटल नवाचार, कौशल विकास, प्रदेश तकनीक, नवाचार और निवेश का नया केंद्र बन रहा है। आइए हम सब प्रदेश के निर्माण में